Yes, class 9th students, welcome back to the video part 3rd for chapter 3. Till the last video, we studied that there was a small girl and she was scared of her father. She was trying to make a beautiful birthday present for her father, a pin cushion. But all of a sudden, what happened? The paper which she had torn for the stuffing for pin cushion as a stuffing were those papers only which were to be delivered as a speech at the port authority by her father. That means again she made a mistake, and this time she was given a very crucial, a very hard punishment by her father. She was beaten on her palms. उसको उसके हाथ पे उसके फादर ने स्केल से मारा हुआ था और इससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. She was shouting no no no, but her father did not listen to her at all, and she was beaten by her father very badly, and this made her even more scared of her father. Okay, so now after that what happened? She was clinged in her grandma's lap. उसकी ग्रैंडमा ने उसको गोदी में उठाया, उसको एक रुमाल दिया, and she told her just to go to a sleep, and she told her that next morning you will forget all the things. But she was not able to forget that what her father had done to her in the last evening. She was very upset. She was Her mood became very bad. Now let's read what happens next. But the child never forgot. We are on page number 35, para number 8. Okay, last three lines of para number 8. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both behind her back, and a red color flew into her cheeks. जैसा कि उसकी ग्रैंडमा ने कहा था, she was not able to forget what happened in the last evening, or she was not able to forget that her father had beaten her so badly. So next time when she saw her father, she kept both her palms behind her back. उसने पीठ की तरफ कर लिए अपने दोनों हाथ, और उसका चेहरा कैसा हो गया? एकदम लाल. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. ओके उसके जो पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे थे. द मैकडोनल्ड्स, द नेम ऑफ द फैमिली वाज मैकडोनल्ड्स, एंड दे वर लिविंग नेक्स्ट डोर, उसके अगले दरवाजे पर. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने? 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो जब उसने फेंस के गैप में से देखा तो क्या देखा कि उनकी फैमिली के जो बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे? टैग मीन्स एक दूसरे को पकड़ना. ओके, जस्ट एज वी ऑल्सो प्ले आइज इन वाटर, so same way they were also catching one another. The father with the baby Mao on his shoulders ran round and round the flower beds, shaking with laughter. And father, जो father थे उनके मैकडोनल्ड्स फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली थे फादर, उनकी गोद में एक बच्चा था. कहाँ था? उनके शोल्डर्स पे एक बच्चा बैठा हुआ था, माओ. और वो क्या कर रहे थे? Mao on his shoulders, and 2 little girls hanging to his coat pockets. और उनके कोट पॉकेट से भी 2 बच्चियां चिपकी हुई थी, और वो उन तीनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर राउंड एंड राउंड दौड़ लगा रहे थे फ्लावर बेड्स के आसपास, शेकिंग विथ लाफ्टर. और वो तीनों बहुत हंस रहे थे. When she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. When she saw the boys turn the hose on him, और क्या देखा उसने कि एक बार वो बच्चे उसकी तरफ भी देख रहे थे. And he tried to catch them, और वो उन दोनों फादर थे अपने 3 बच्चों से, उन दोनों बच्चों को, उन दोनों बॉयज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. और वो पांचों पूरा ही टाइम कंटिन्यूसली हंस रहे थे. Then it was she decided that there were different sorts of fathers. और उसके बाद उस गर्ल को महसूस हुआ कि जो फादर्स भी होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं. Okay, suddenly then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill, and she and grandma went to hospital. एक दिन अचानक से क्या हुआ? उसकी मदर बीमार पड़ जाती हैं, और उनको और ग्रैंडमा को हॉस्पिटल जाना होता है. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और उस दिन वो अकेली रह जाती. एलाइज द कुक, जो खाने बनाने वाला था, उसके साथ, जिसका नाम एलाइज था, वो और लिटिल गर्ल दोनों घर पे अकेले रह जाते हैं. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब दिन के समय तो उसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया. ओके, बट वाइल Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. बट रात का समय जब आया, और जब एलाइस जो कुक था वो उसको सोने के लिए लेके गई, जो कुक थी वो जब उसको सोने के लिए ले गई, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई. वो छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई. What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे कई बार रात को बुरे सपने आते हैं, पर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं.
आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल्स गेट विस्परी। मैं तो दिन भर ऐसे तो रह सकती हूँ, पर मैं रात को अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। और क्या हुआ, जो कुक थी उन्होंने अपने सॉक्स उतारते हुए क्या कहा, तुम जाके चुपचाप सो जाओ, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम्हारे फादर भी बहुत थके हुए हैं, प्लीज आप तुम चिल्लाकर उनको उठा मत देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope. अब क्या हुआ, रात को उसे फिर वही बुरा सपना आया। उसने क्या देखा, एक बुच्चर, कसाई, विद अ नाइफ, और उसके हाथ में क्या था, ही वॉज हैविंग अ नाइफ एंड अ रोप, एक रस्सी। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, जो कि बहुत जोर से हंस रहा था और उसके पास आ रहा था। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" और वो इतना डर जाती थी अपने नाइटमेयर में, बुरे सपने में, कि वो सिर्फ चिल्लाती थी, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" ओके, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और जब वो उठी तो उसने क्या देखा, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। जब वो उठी, उसने आंखें खोली तो देखा उसके बेड के पास कौन खड़ा था, उसके फादर, और उनके हाथ में कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने पूछा, क्या हुआ। ओ अ बुच्चर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। और वो बच्ची क्या कहती, मैंने फिर वही बुरा सपना देखा, वही बुच्चर, वही कसाई, उसके हाथ में एक नाइफ था, मुझे मेरी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती को बुझाया, वो नीचे झुके और उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस बच्ची को अपने बेडरूम में लेकर आए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर जो कि बेड पर रखा हुआ था उसको साइड से रखा और बच्ची को सावधानी से बेड पर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. और वो उनके जो उसके फादर थे वो भी उसके पास लेट गए, हाफ अस्लिप स्टिल। वो लड़की आधी सोई हुई थी, आधी जागी थी, ऐसा लग रहा था शायद उसको अभी भी सपने में बुच्चर और वो नाइफ दिखाई दे रहा है। शी crept क्लोज टू हिम, वो उनके पास जाकर चिपक जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपनी जो उसके फादर का आर्म था उसके ऊपर अपना अपना सिर रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। उसके बाद उसे अंधेरे से डर लगना बंद हो गया, वह वैसे ही सोई रही अपने फादर के पास। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। आई थिंक इट वॉज द विंटर सीजन, दैट्स व्हाई फादर टोल्ड हर दैट तुम अपने पैरों को मेरे लेग्स से रब कर लो, यू विल फील बेटर। Tired out, he slept before the little girl. शायद उसके फादर बहुत थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. उसको क्या लगने लगा, उसको भी लगने लगा कि यार मैं थोड़ा सा गलत सोचती थी, मेरे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं और शायद उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. उसने क्या महसूस किया कि जो उसके फादर की स्किन थी वो ग्रैंडमदर से थोड़ी हार्ड थी, बट उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. And every day he had to work hard. Then she was realizing that every day her father was working hard and was too tired to be a Mr. McDonald. मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह उसके फादर भी बहुत ज़्यादा काम करते थे, और उसके फादर की स्पीच उसने जो कि फाड़ दी थी, शी वॉज फीलिंग पिटी। उसको बहुत बुरा लग रहा था आज अपने लिए कि उसने अपने फादर की स्पीच को भी फाड़ दिया। कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी वो। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वो आह भरने लगी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। उसके फादर ने फिर पूछा, क्या हो गया। अनदर ड्रीम, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, नॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो लड़की क्या कहती, ओ सेड द लिटिल गर्ल, यस आई हैड अ बिग ड्रीम, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके सीने पे है, ओके आपके दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सक रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, जो अपने फादर से कहती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। यू आर माई सच अ डियर फादर, आप मेरे बहुत ही अच्छे फादर हैं। ओके, लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। Match the columns
in column A with the items in column B, homework. Okay, then again second part you have to do by yourself, third part also you have to do by yourself in the notebook. Second and third part will be done in the notebook. Next is thinking about language. This is the exercise related to synonyms. Okay, and next is with the degree of comparison. Okay, so again thinking about language 1 and 2 are homework. Okay, that's all in this video. Thanks for listening.